بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے کیونکہ ابا کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن میری دادی نے مرتے وقت کچھ کانچ کی چوڑیاں مجھے دیں اور کہا، بیٹا ان کی حفاظت کرنا، کیونکہ ضرورت پڑنے پر یہ تمہیں کروڑ پتی بنا دیں گی، اور اگر ان میں سے ایک بھی ٹوٹ گئی نا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر دادی کے مرنے کے بعد ہمارے گھر واقعی ریل پیل ہو گئی اور ہم امیر ہو گئے، لیکن ایک دن میں غلطی سے گر گئی اور ایک چوڑی ٹوٹ گئی، اور ٹھیک اسی وقت۔ میرا نام رائے شاہ ہے، میری عمر 27 سال ہے، میں گجرات کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے پورے خاندان سے میرے لیے رشتے آنے شروع ہوئے۔ اس کی وجہ میرا حسن اور میری دودھیا رنگت تھی۔ میرا ملائی جیسا سراپا سب کو میری طرف متوجہ کرتا تھا، جو بھی مجھے دیکھتا وہ ٹکٹکی باندھے بس تکتا ہی رہتا تھا۔ کانچ جیسی نیلی آنکھیں، لمبے شہد رنگ کے بال، سفید دودھ جیسی رنگت، ملائی جیسی چمکدار جلد مجھے 6 سال کی اس چھوٹی سی عمر میں ہی منفرد بناتی تھی۔ میرے امی اور ابا کو سب بہن بھائیوں کے مستقبل اور ان کی شادیوں کی فکر تھی، لیکن میری نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا کہیں بہت اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے گا۔ لیکن باقی بہن بھائی شکل و صورت میں مجھ سے کم تھے، اس لیے میری وجہ سے انہیں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میری امی اور بابا کو لوگ میری خوبصورتی کی وجہ سے بہت محبت دیتے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی مجھے بہت توجہ دیتے۔ انہیں پتا تھا کہ سارے خاندان کی نگاہ کا مرکز وہ ہیں تو صرف میری وجہ سے ہیں۔ ہر گھر مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، حالانکہ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے، لیکن پھر بھی سب ہماری مدد کرتے، ہمیں عزت دیتے تھے، اور وجہ صرف میری اچھی صورت تھی۔ ان کا لالچ تھا کہ کوئی اور مجھے بیاہ کرنا لے جائے، بلکہ تایا کو تو یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے حسن کی وجہ سے کہیں میرے بھائی کی غربت ہی ختم نہ ہو جائے، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو کہیں میرے دباؤ سے نکل نہ جائے۔ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں اگر میرا رشتہ کسی امیر خاندان میں ہو گیا تو پھر کہیں میں سب کے حالات ہی نہ بدل دوں۔ بابا تو مجھے کبھی بھی کسی بھی بات پر نہیں ڈانٹتے تھے، بلکہ وہ اکثر امی سے کہتے تھے، اسے کام نہ کرنے دیا کرو اور نہ ہی کچھ کھانا بنانے کے لیے اسے کہا کرو۔ انہیں میں موم کی گڑیا لگتی تھی جو شاید گرمی میں کہیں پگھل نہ جائے۔ وہ خود سارا دن رکشہ چلاتے تھے اور ایسے موسم میں ہی کام کرتے تھے، کبھی کبھی تو مزدوری بھی کر لیتے، لیکن میرے لیے ہمیشہ انہوں نے اچھا ہی سوچا تھا۔ مجھے بہت ہی نازک انداز میں پالا تھا، لیکن میری امی نے میری پرورش بہت الگ طریقے سے کی تھی۔ وہ کبھی بھی بابا یا کسی اور رشتہ دار کی باتوں میں نہیں آتی تھی، نہ ہی مجھے آنے دیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے سر چڑھایا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے بھی باقی بہن بھائیوں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ وہ سب کو یہی کہتی تھی، یہ بھی میرے باقی بچوں کی طرح ہی ہے، اگر میں اسے کام نہیں کرواؤں گی تو کل کو پرائے گھر جا کر باتیں سنے گی، اور پھر ہمیں کوسنے دے گی کہ امی بابا نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ لوگ ایک آدھ ماہ شکل صورت دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر باقی کی زندگی سفید چمڑی سے کام نہیں چلتا۔ ہاتھ میں ہنر ہو تو سسرال میں مقام بنتا ہے، کیونکہ جو عورت پھوہڑ اور نکمی ہوتی ہے اس پر رب کا بھی عذاب آتا ہے، اور اسے اس کے سسرال والے بھی پسند نہیں کرتے، میاں کے دل سے بھی اتر جاتی ہے۔ اور امی کی یہ بات ہمیشہ مجھے سب سے اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا کبھی بھی اپنے حسن پر غرور نہ کرنا، یہ ایک فانی چیز ہے اور وقت کے ساتھ ڈھل جائے گا، باقی رہ جائے گا تو تمہارا عمل اور تمہارا ہنر۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کو یا پھر اپنے شوہر کو بھی اپنے سے کمتر مت سمجھنا، اور شکل و صورت کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش مت آنا۔ میں نے سارا بچپن امی کی یہ نصیحتیں سنی تھی، اور اب جوانی کے ساتھ ساتھ مجھ میں اتنی عقل اور شعور بھی آ گئی تھی کہ مجھے کسی بھی چیز کا رتی برابر بھی غرور نہیں تھا۔ میں گھر کے ہر کام میں طاق تھی، کئی لوگوں کا کھانا ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر چٹکیوں میں بنا لیتی۔ سلائی کڑھائی تو جیسے میرا مشغلہ تھا، ہر قسم کا ٹانکا ایسے بناتی کہ دیکھنے والا اشش کر اٹھتا۔ ایف اے تک پڑھا، اور وہ بھی جتنا ہو سکا اچھا پڑھا، پھر خوب محنت بھی کی۔ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ خوبصورت لڑکیاں پڑھائی میں بالکل بھی تیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں کوئی سلیقہ ہوتا ہے، وہ تو بس اپنا حسن سنوارنے میں ہی لگی رہتی ہیں۔ میں نے سب لوگوں کی اتنی باتیں سنی تھی کہ مجھ پر یہ جنون سوار ہو گیا کہ ان سب لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہے۔ میں نے
इसी जुनून और लगन में दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया और हर वक्त किताबें हाथ में थामे रट्टा मारती रहती थी। अम्मी मुझे कहती थी, बेटा तुम्हें इतना थकने की जरूरत नहीं है, तुमने कौन सा आगे नौकरी करनी है या और पढ़ना है, बस शादी ही तो करनी है ना, वो भी माशाल्लाह शक्ल तुम्हारी अच्छी है, सलीका भी है, आराम से हो जाएगी, तुम खुद को बस इतना हल्का मत किया करो। और मैं अम्मी की ये बातें सुनकर बस मुस्कुरा कर रह जाती। मैं उनको कैसे बताती जो मेरे साथ हो रहा था और मैं झेल रही थी, बल्कि वो क्या, मैं किसी को भी बताती तो उसे ये वजह मज़हका खेज ही लगती कि मैं सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही हूँ कि खूबसूरत लोग भी पढ़ाई लिखाई में कामयाब हो सकते हैं। और फिर मैंने सबकी बातों को एक तरफ किया और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। जिस दिन मेरा नतीजा आया उस दिन सबके मुंह पर कुफुल लग गया था। मैंने पूरे गांव में अव्वल पोजीशन ली थी, बल्कि सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, पूरे 8 कस्बों के नताइज मिलाकर भी देखा तो मैं ही अव्वल थी। उस दिन सब लोग बहुत खुश थे। हर कोई अम्मा अब्बा को कह रहा था कि आपकी बेटी तो हरफन मौला है, इसकी तकदीर तो जैसे रब ने सुनहरी कलम से लिखी है। प्यारी भी पहले बहुत थी और अब तो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी निकली। हर तरफ यही मशहूर था कि रशीद रिक्शे वाले की बेटी ने सब अमीरों के बच्चियों को पीछे छोड़ दिया है। मेरे इतने अच्छे नतीजे से मुझे हौसला मिला था। मैंने सोचा कि मैं शहर जाकर अब यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी। मैं अब तक वजीफे पर पढ़ती आई थी। हर जमात में मैं ही फीस की माफ़ी की दरख्वास्त देती थी और फिर बिला मुआवजा पढ़ती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल था क्योंकि उस पर बहुत खर्चा आता। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि गांव के सरपंच ने जब मेरी कामयाबी का सुना तो वो बहुत खुश हुआ और कहा, अब से इसकी सारी तालीम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। क्योंकि मैंने अपने अब्बा अम्मा का ही नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन किया था। इस वजह से मेरा सारा बोझ अब उनका हुआ। उनकी इस बात को सुनकर अब्बा बहुत खुश हुए थे। जिस तरह से अब्बा खुश थे, मुझे उम्मीद थी कि वो मान भी जाएंगे और आसानी से मुझे इजाजत दे देंगे। मैंने ख्वाबों में खुद को शहर में भी कई बार देख लिया था और फिर जब मैंने अब्बा से आगे पढ़ने की बात की तो वो हस्बे तवक्कुह मान गए और बिना किसी हीलो हुज्जत के इजाजत दे दी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पढ़ाई और रिहाइश के खर्चे का था और वो सरपंच ने हल कर दिया था। और तो और मेरे लिए महाना 15,000 का वजीफा भी लगा दिया था। जब तक पढ़ाई जारी रहती मुझे वो वजीफा मिलता रहता। अब्बा ने मेरे शहर जाने की बात खानदान में की तो जैसे तूफान खड़ा हो गया और मेरे शहर के कॉलेज में पढ़ने की खबर आग बनकर पूरे खानदान में फैल गई। मैंने कई कॉलेजों के फॉर्म ले लिए थे, सबके सब लड़कियों के थे। मैं चाहती तो जिस भी कॉलेज पर हाथ रखती मुझे वहां दाखिला मिल जाता, लेकिन मैं अपना माहौल और खानदान के बारे में जानती थी, इसलिए मैंने लड़कियों के कॉलेज के फॉर्म लिए। मगर मेरे ताया ने बिना कुछ सुने मना कर दिया। वो हमारे खानदान के सरबराह थे और उनकी हुक्म अदूली कोई नहीं कर सकता था। अब्बा ने बहुत कहा, भाईजान मुझे अपनी बेटी और अपनी परवरिश पर बहुत भरोसा है, लेकिन ताया अब्बा ने सख्त अल्फाज में मना कर दिया और कहा, अरे तुम नहीं समझते, ये अच्छी खासी खूबसूरत है शक्ल की, वहां जाएगी तो जरूर कोई ना कोई चक्कर चला लेगी, और अगर ये किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई ना और मुंह काला कर दिया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब्बा ने बहुत कहा, लेकिन फिर भी ताया अब्बा ने एक ना सुनी और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। अरे खूबसूरती है तो बदचलनी लाजमी है। और फिर अब्बा तो हार मान कर बैठ ही गए थे। लेकिन फिर दादी बीच में पड़ गई और किसी ना किसी तरह मुझे इजाजत ले ही दी। वो चुपके से सरपंच के पास चली गई थी और कहा कि मेरा ये बेटा इस बच्ची को आगे पढ़ने नहीं देता। और इस वजह से फिर सरपंच साहब ने ताया की सख्त सरजनिश की और मुझे गुजरात शहर भेज दिया। यहाँ जिंदगी बहुत हसीन थी, हसीन ही नहीं बल्कि यहाँ तो सब कुछ ख्वाब जैसा था। जैसा माहौल मैं अपने गांव में देख कर आई थी, यहाँ तो जिंदगी उससे भी कई गुना तेज थी। मैं चिड़िया की तरह ही हर चीज देख रही थी और ऐसे ही उड़ भी रही थी, क्योंकि मुझे पहली दफा पंख मिले थे। लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि मेरे ये पर बहुत ही जल्द काट दिए जाने वाले थे, क्योंकि हमारे गांव के कई लोग, खास तौर पर रिश्तेदार, हमें पीछे धकेलना चाहते थे। और फिर एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। मेरे ताया अपने बेटों के साथ मेरी यूनिवर्सिटी आ गए थे। साथ मेरा छोटा भाई भी था और यूनिवर्सिटी वो मेरे पीछे मेरी रखवाली और जांच पड़ताल के लिए आए थे। लेकिन उनका गांव वाला हुलिया देखकर उन्हें किसी ने अंदर ना आने दिया।
जब मुझे पता लगा तो मैं हैरान रह गई कि वो यहाँ कैसे आए। मैं गेट पर गई और अपना शनाख्ती कार्ड गार्ड को दिया। गार्ड ने कहा कि किसी प्रोफेसर के ही कहने पर ये अंदर आ सकते हैं। मैं चूंकि अच्छी तालबा थी इसलिए सब उस्ताद मेरी इज्जत करते थे। मैंने एक प्रोफेसर को फोन कर दिया और बस वही वो लम्हा था कि मेरे ताया को मौका मिल गया और वो मुझे यूनिवर्सिटी से मारते हुए ले गए। गांव जाकर इतना शोर मचाया और कहा कि मैं न कहता था कि ये लड़की ऐसी ही है, ये घटिया लड़की है, इसके पास अलग अलग लड़कों के नंबर हैं। इस बात पर उन्होंने बहुत शोर मचाया और मार पीट कर मुझे घर बिठा दिया। मेरा भाई कहता रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मेरा फोन भी तोड़ दिया गया था और मेरे शहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब मैं खाली हाथ रह गई थी। मेरा खुद भी यूनिवर्सिटी दोबारा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि ताया जी जिस तरह मुझे सबके सामने मारते हुए लाए थे, मेरी इज्जत तो वैसे ही दो कौड़ी की हो चुकी थी। इसलिए उस जगह जाना मजीद जलील होना था। मैं भी चुपचाप बैठ गई। बाबा मेरे पास आए और कहा, बेटा, काश मैं अमीर होता और मुझ में इतनी सकत होती कि तुम्हें पढ़ा सकता और अपने बलबूते पर शहर ले जा सकता, तो फिर मैं देखता कि इन लोगों में से कौन था जो मुझे रोक सकता। अब्बा की ये मजबूरी थी जिस पर मैं खामोश हो गई। ताया जी की इस हरकत के बाद दादी मुस्तकिल हमारे पास आ गई थी और हम लोग भी अब दादी से ही सारे सुख दुख करते थे, क्योंकि अब्बा तो अब टूट कर रह गए थे कि वो किसी को भी कुछ नहीं कहते थे। मुझे लगा था कि शायद मैं ही हूँ जिस पर हर चीज का सबसे ज्यादा असर हुआ है, लेकिन ये मेरी भूल थी। इस वाक़े का सबसे ज्यादा असर मेरे अब्बा ने लिया था और फिर वो चंद दिन में ही खत्म हो गए थे। एक रात वो सोए तो सुबह उठ ही नहीं सके। उनकी लाश कब्र से बरामद हुई थी और ये देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ खुद अब्बा को दी थी। मैंने उन्हें उस गलती की सजा दी थी जो उन्होंने की ही नहीं थी। सारा कसूर मुआशरे का था, लेकिन अब्बा पर ही मेरा सारा जोर चलता था और वो शर्मिंदा ही चले गए थे। अब्बा के गुजरने से पहले जो ताया हमारे सरबराह बनते फिरते थे, हमारे हर किस्म के फैसले करते थे, उन्होंने भी अब हमारी सरबराही से हाथ उठा लिया था। कभी भी हमें अपनी गली में नजर ना आए। उन्होंने जो जमीन अब्बा के नाम की थी वो ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन जो थी वो भी हथिया ली थी। और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात थी कि हमें हमारा जायज हिस्सा भी नहीं मिला था। ताया अब्बा की इस हरकत पर दादी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो बाज ना आए। अब्बा के जाने के बाद हम पर तो जुल्म के पहाड़ ही टूट पड़े थे। हम दुनिया की ठोकरों में आ गए थे। घर में फाके शुरू हो गए। मेरा भाई भी छोटा था, वो तो कमाने के लिए अभी तैयार भी नहीं था, लेकिन हम पेट के हाथों मजबूर थे, इसलिए उसे रिक्शा देकर अम्मी ने भेज दिया, जाओ बेटा पैसे कमा कर लाओ। और ऐसे हमारे घर में कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम चलने लगा था, लेकिन वो सिर्फ इतना ही कमा पाता था जितना एक वक्त का खाना बन जाता, और हमारे लिए अभी यही बहुत था। अब कुछ दिनों से एक गैर मामूली सी चीज हो रही थी। वो ये कि दादी अब अक्सर घर से दोपहर में निकल जाती और मगरिब के वक्त आती। हम लोग साथ चलने का कहते तो वो गुस्सा कर जाती। तुम लोगों को मुझ पर शक है या कोई खास मसला है जो तुम लोग मुझे अकेली नहीं जाने देते? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बस अपनी दोस्त से मिलने जाती हूँ। और दादी की यही बात हमें खटकती थी कि वो कैसी दोस्त से मिलने जा सकती थी। उनकी तो कोई दोस्त ही नहीं थी। लेकिन हमारे लिए ये भी इत्मीनान था, क्योंकि घर बैठकर दादी हर वक्त परेशान होती रहती थी, रोती रहती थी। कभी वो अब्बा को याद करती तो कभी ताया के किए हुए जुल्म को, और कभी तो वो मेरी फूटी किस्मत पर रोने लगती थी। अब तो खानदान से या गांव से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था, क्योंकि अब मेरे दामन पर दाग लग चुका था ना, जो मेरे अपनों ने ही लगाया था। और दूसरा, अब मेरे सर पर बाप का साया भी नहीं रहा था। पहले तो सब लोग जानते थे कि बेशक अब्बा गरीब थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके मुझे जहेज जरूर देते, खाली हाथ ना भेजते। तीसरा, अब्बा जी की जमीन का भी सबको इल्म था कि थोड़ी बहुत जमीन है, वो बेचकर बेटी को रुखसत कर देगा। लेकिन अब अब्बा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं एक बदकिरदार और यतीम लड़की थी जिसके लिए लोगों के दिलों में बस हमदर्दी ही थी। अम्मा मुझे हमेशा समझाती रहती थी, बेटा
हमारे दिन जल्द ही बदल जाएंगे। तुम फिक्र मत किया करो। रब एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है। इसलिए मेरी बच्ची तुम परेशान मत हो। लेकिन मैं फिर भी कभी कभी मायूस हो जाती थी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। मैं अम्मा के सामने अपना बोझ हल्का नहीं कर सकती थी। इसलिए जब भी मेरा दिल भर आता, मैं फौरन से दादी के पास पहुंच जाती। उनके पास मेरे सारे मसलों का हल था। वो मेरी परेशानियों को सुनकर मुझे टोकती नहीं थी, बस हंसकर कहती थी, अरे देखना, एक दिन तो शहजादी की तरह राज करेगी। लेकिन मुझे ये बात मजाक लगती थी। और फिर मेरे साथ एक और चीज बुरी हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि जब मुश्किलों पर इंसान को सब्र नहीं आता और वो शिकवे करता है, तो उस पर मजीद मुश्किलात डाली जाती हैं ताकि वो सब्र करना सीख जाए। ऐसा ही हमारे साथ भी था। पहले मेरे वाला मसला, फिर अब्बा का यकदम चले जाना, और फिर ऐसे ही दादी का इंतकाल। हम सब के लिए बहुत बड़ी खबर थी। मरने से पहले वाली रात दादी बहुत हशाश बशाश थी। काफी देर तक इबादत करती रही। मैं भी उनके पास ही थी। मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन दादी इतनी मुतमिन थी जैसे कोई फरिश्ता होता है। और फिर कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। मैं उठने ही लगी थी कि जाकर भाई को बुलाऊं ताकि वो दादी को हॉस्पिटल ले जा सके। लेकिन दादी ने उसी वक्त मुझे रोक लिया और कहा, अरे मेरी बच्ची, अभी मेरे पास बस चंद लम्हों का ही वक्त है, इसलिए मेरी बात है जरूरी, गौर से सुनो। मैंने दादी का सर गोद में रख लिया था, और फिर दादी ने मुझे कुछ कांच की चूड़ियां दी और कहने लगी, इससे तुम लोगों की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी और तुम लोग बहुत खुश रहोगे। बस अब इनका ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखना मेरी बच्ची। ये कहकर दादी ने मुझे चूड़ियां थमाई और उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने वो चूड़ियों वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे वो मजाक लग रहा था कि सिर्फ खाली चूड़ियों से हम लोग कैसे अमीर हो सकते हैं। हो सकता है कि दादी ने मरते मरते ऐसे ही कह दिया हो, क्योंकि वो सारी रात हमारे लिए दुआ करती रही थी। लेकिन फिर भी मैंने वो चूड़ियां पहन ली थी, और फिर कुछ दिन के बाद ही हमारे साथ अलग अलग सी चीजें होने लगी थी। मेरे भाई को एक बड़ी सी कंपनी में ट्रांसपोर्ट की नौकरी मिल गई थी, और वो भी बहुत अच्छी सीट पर। हमारे दिन फिर गए थे। मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने दोबारा बुला लिया था, वो भी अपनी दूसरी ब्रांच में, जहां मुझे कोई भी नहीं जानता था। और मैं भी जल्दी से पहली फुर्सत में शहर चली गई। मुझे वहां पर पढ़ाने की नौकरी भी मिल गई थी। मैं बड़ी हैरान थी कि दादी की मौत के बाद वाकई हमारे दिन फिर गए थे, और हम लोगों की सब मुश्किलात खत्म हो गई थी। जैसे जैसे मैं तरक्की कर रही थी, मेरे लिए उम्मीदवारों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। जैसे पहले थी, अब से भी कहीं ज्यादा थी। और फिर मैंने इतने सारे लोगों में से अहमद को चुना। वो बहुत ही अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों की मंगनी कर दी गई, और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। मैं जिस जगह पढ़ाती थी वो अहमद की ही थी, इसलिए उसे मेरे नौकरी करने पर कोई भी एतराज नहीं था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मेरी और अहमद की शादी होने वाली थी। लेकिन एक दिन बेदहानी में मैं सीढ़ियां उतरते हुए फिसल कर गिर गई। इस वजह से मेरे हाथ में मौजूद दादी की चूड़ियों में से एक चूड़ी टूट गई, और मुझे उसी वक्त दादी की कही बात याद आई, अगर इनमें से कोई भी चूड़ी टूटी तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह खैर करेगा। मगर ठीक उसी वक्त मेरा फोन बजा, और मुझे पता लगा कि अहमद का एक्सीडेंट हो गया है, वो खतरे में था। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन वो 2 दिन बाद भी खतरे से बाहर नहीं आया। भाई को भी उनके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया था। अब मुझे समझ आया कि दादी ने सही कहा था। मैं फिर से गांव गई और सारी बात अम्मा को बताई, तो वो भी हैरान रह गई। और फिर उन्होंने कहा कि जरूर इस बात का ही मासी आमना को होगा, क्योंकि तुम्हारी दादी का उनके साथ बहुत लेन देन था। हम मासी आमना के पास गए तो उन्होंने बताया कि अरे बेटा, तुम्हारी दादी एक पीर बाबा के पास मेरे साथ जाती थी। वो बहुत नेक थे। उन्होंने एक ही बात तुझे बताई थी कि किसी भी कांच की चीज पर करो, जब तक वो चीज सलामत रहेगी तो सब अच्छा होगा। लेकिन फिर जैसे ही वो कांच की चीज टूट जाएगी ना, तो इबादत का असर भी चला जाएगा। इसीलिए तुम्हारी दादी ने कांच की चूड़ियों पर वो दम किया था, क्योंकि वो जानती थी कि तुम शौक से चूड़ियां पहनती हो, और उन्हें
तुम्हारे बाकिरदार होने पर भरोसा था, लेकिन अब क्या हो सकता है। मासी आमना से पूछकर हम उन बुजुर्ग के पास गए थे और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये दम कोई भी कर सकता है। मैंने उन्हें बताया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इतने दिन का इंतजार करूं, क्योंकि अहमद की जान खतरे में है। फिर पीर बाबा ने बताया, तुम दिल में मन्नत मान कर चूड़ियां पहन लो और सब होने के बाद वो दम कर लेना। मैंने ऐसा ही किया था और फिर अहमद भी ठीक हो गया। आज हमारे 3 बच्चे हैं, भाई की भी नौकरी लग गई है, घर में सब अच्छा हो गया। हम सब बहन भाई आज बेहतरीन जगहों पर हैं। पूरे गांव में सबसे ज्यादा तरक्की हमने की है और तायार के बच्चे तो तबाह हो गए हैं। मैंने अहमद के ठीक होने के दिन से ही वो दम कर लिया था और आज मैं बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। उन चोरियों की हिफाजत खुद से भी ज्यादा करती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।